Greetings everyone, welcome to the channel. In this particular video, I am going to discuss the current affairs and most of these current affairs are from IS Parliament एंड हमारे पास रीड करने का पेशेंस नहीं होता है, तो आपको बस इस वीडियो को लगातार सुनना है और जो भी फैक्ट्स हैं आप चाहें तो साथ में नोट मेकिंग भी कर सकते हैं. मैं हाईलाइट करते हुए भी चलूँगा और नोट करते हुए भी चलूँगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स के बारे में है. एंड दिस वाज फाउंडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. दिस इज़ वेरी मच कॉमन इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. जो चार्टर साइन कहाँ पे हुआ था, तो चार्टर सैन फ्रांसिस्को में साइन हुआ था. कब साइन हुआ था? 26 जून 1945 को. और चार्टर को लाइफ मिली या एग्जिस्टेंस में आया 24 अक्टूबर 1945 को. और 51 कंट्रीज़ ने इनिशियली इसको साइन किया था. दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए. ठीक है, तो याद रखेंगे 26 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945 केम इनटू लाइफ, 51 कंट्रीज हैड साइंड इट. ठीक है, व्हाट वाज द नेम बिफोर United Nations? It was called as League of Nations, and this League of Nations was created under Treaty of Versailles. Treaty of Versailles, which is of 1919. इस ट्रीटी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1946 में. ठीक है, द मिशन इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, develop friendly relations among nations, promote social progress and standards of living and human rights. Now this can be a statement based question. Okay, so it always remember that this can be a statement based question, and hereby you can get confused, right? The main organs were established under UN Charter. Okay, there are specialized agencies of United Nations which are not main organs, like World Food Program, World Health Organization, and they are created under Article 57 of the Charter. Okay, the specialized agencies are created under Article 57 of the Charter, and the funds and the programs that are there are established by General Assembly, and General Assembly has authority to establish funds and programs under Article 22. So under Article 22, it is United Nations General Assembly which can fund, which can establish funds and programs. Okay, and the main organs are created under UN Charter. They are already defined under UN Charter, and specialized agencies under Article 57 of the Charter. All right, the headquarters are in New York, and as you can see, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 official languages, and 6 official languages are Arabic, Chinese, English, French, Spanish, Russian. Arabic, Chinese. Okay, so it is very easy to remember. पहले तो UNSC के जो members हैं, चाइना है, रशिया है और फ्रांस है और यूके है, यूके यूएस. तो उनकी लैंग्वेज तो है ही, एक्स्ट्रा में अपने पास स्पेनिश है और अरबिक है. ओके, 193 मेंबर्स हैं. 2011 में ज्वाइन करने वाला साउथ सूडान था. सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गुटेरेस एंड ही इज फ्रॉम पोर्टुगल. एंड द 6 मेन ऑर्गन्स आर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, एंड इसको कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. दिस इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. These are the 6 principal organs. So this was the basic fact with respect to United Nations जो हमें पता होना चाहिए. Okay, let's move ahead. The main organs, now it is talking about the main organs. So India is also a part of United Nations General Assembly. The General Assembly is basically a deliberative organ. What is the purpose of the deliberative organ? All countries come together to sit and discuss here. They discuss, they debate, they make recommendations, whatever are matters with respect to the agenda of United Nations. So disarmament is also one of the leading, areas of conflict where countries are not able to come, and peaceful arbitration of disputes is also one aspect where most of these countries do not really agree. Right? So whatever are the reports which are prepared by other 4 organs, they come before United Nations General Assembly. And the financial situations of the member states is also discussed, and United Nations General Assembly also approves the UN budget. So as you can see, the budget of United Nations is passed in a very democratic pattern because United Nations General Assembly में सभी लोग बैठते हैं.
अब इनके सेशंस जो होते हैं वो यूजुअली सितंबर से दिसंबर में होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल और इमरजेंसी सेशंस ये लोग बुला सकते हैं विद इन 24 आवर्स अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वेस्ट करे या मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स और वन मेंबर स्टेट इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स कॉन्कर। ठीक है, अगर 193 में लेट से मेजॉरिटी यानी 50% प्लस वन स्टेट्स अगर बोल दें कि एक इमरजेंसी मीटिंग करानी है या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या रिकमेंडेशन दे दे, रिक्वेस्ट कर दे, रिकमेंडेशन क्या रिक्वेस्ट कर दे, तो इमरजेंसी मीटिंग हो जाती है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सेक्रेटरी जनरल होता है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसको रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लाया जाता है। ठीक है, और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के यूएनएससी में आपको पता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि 15 मेंबर्स जो होते हैं, तो उसमें से जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनकी संख्या 10 होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इकोसॉक के जो मेंबर्स होते हैं है ना, उनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से चूज़ किया जाता है। तो मतलब जनरल असेंबली मेन जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा या पार्लियामेंट है वैसी है। और जजेस भी जो हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो भी यहीं पे इलेक्ट होते हैं। ठीक है, हर कंट्री का एक सिंगल वोट है ना। असेंबली का हर साल अपना एक प्रेसिडेंट होता है, एक एनुअल सेशन में एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक अपना प्रेसिडेंट होता है, राइट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होता है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की जब बात की जा रही है, तो सेक्रेटरी जनरल्स एक्चुअली में ही इज़ अ सेक्रेटरी जनरल नॉट ऑफ ओनली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, बट ही इज़ बेसिकली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंटायर UN. Okay, so this is where you need to understand the difference between United Nations Secretary General and United Nations President. Secretary General का फिक्स टेन्योर होता है और सेक्रेटरी जनरल का जो चुनाव होता है ना, जो सेक्रेटरी जनरल का चुनाव होता है वो भी आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होता है। और जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, वो साल दर साल चेंज होता है ना। पैलेस्टीन और वेटिकन सिटी ये दो नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जो असेंबली में दे हैव अ राइट टू स्पीक बट दे कैन नॉट वोट ऑन रेजोल्यूशंस। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन MCQ एरिया जो आपसे पूछा जा सकता है, दैट पैलेस्टीन एंड वेटिकन सिटी। ओके, असेंबली इलेक्शंस की बात करेंगे। डिसीजन ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सच एज दोज ऑन पीस एंड सिक्योरिटी, UN बजट, admission, suspension and expulsion of members to various organs of United Nations require special majority. Now ये वाला जो देखिए, अब ये अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाता है कि यूनाइटेड नेशंस में स्पेशल मेजॉरिटी कब कब चाहिए होती है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पीस एंड सिक्योरिटी के, UN बजट के, किसी मेंबर को जोड़ना है, सस्पेंड करना है या एक्सपल करना है, ठीक है, टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वहाँ पे अपने को स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए रहती है। ओके, so this United Nations General Assembly does not discuss on any matters which are under the consideration of Security Council, but otherwise ये जनरल बॉडी है। 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने UDHR बनाया जिसमें 30 आर्टिकल्स हैं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर ह्यूमन राइट्स को सेट करते हैं। हर कंट्री को UDHR के हिसाब से अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने चाहिए। 1950 में इसने यूनाइटिंग फॉर पीस नाम का एक रेजोल्यूशन स्टार्ट किया। 1948 में UDHR आया और 1950 में यूनाइटेड फॉर पीस नाम का रेजोल्यूशन आया जिसमें कहा कि इफ़ UNSC फेल्स टू एक्सरसाइज इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दैट दे शुड टेक अप द मैटर ऑन देमसेल्व्स एंड अर्ज कलेक्टिव एक्शन। सो United Nations Security Council is continuously, stated that it is very biased. But let us say अगर United Nations Security Council important matter of conflict पे decide नहीं कर पाए तो जनरल असेंबली ये काम कर सकता है। और ये जो रेजोल्यूशन है एक्चुअली ये देखिए UN चार्टर में नहीं लिखा हुआ है, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसी बात UN चार्टर में नहीं लिखी हुई है। UN चार्टर में पीस एंड सिक्योरिटी के लिए सारा काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दिया गया है, बट एक यूनाइटिंग फॉर पीस नाम का एक डिक्लेरेशन 1950 में आया, यानी यूनाइटेड नेशंस को खुद UN चार्टर का ये फ्लॉ जो है समझ में आया, तो उन्होंने कहा कि UNGA शुड टेक अप द मैटर इन इटसेल्फ एंड अर्ज कलेक्टिव एक्शन।
फिर सन 2000 में इन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स नाम के गोल्स बनाए, जो ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से 2015 से जाने जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास ये भी पावर है कि ये स्टेट्स के ऊपर सेंसर लगा सकता है, मतलब कि सैंक्शंस एक तरीके से लगा सकता है, या स्टेट्स को ये बोल सकता है कि आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोट नहीं कर सकते बिकॉज आप खुद यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, है ना। अब यूनाइटेड नेशंस का जो पैसा है, जो फंक्शनिंग के लिए पैसा रिक्वायर्ड होता है, वो कहाँ से आता है? तो ये मेंबर स्टेट्स के द्वारा कंट्रीब्यूशन से आता है, और कुछ तरह के कंट्रीब्यूशंस कंपलसरी होते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशंस वॉलंटरी होते हैं। तो देखिए, मेंबर स्टेट्स जो 193 कंट्रीज़ हैं, दे प्रोवाइड सर्टेन सॉर्ट ऑफ मनी, सम अमाउंट ऑफ मनी टू यूनाइटेड नेशंस। अब कितना प्रोवाइड करते हैं वो उस कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे है, ठीक है। दो इट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एंड डेट सिचुएशन आर ऑल्सो कंसिडर्ड, मेंबर कंट्रीज कैन मेक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू यूनेस्को, WHO, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम्स एंड फंड्स सच एज refugees and children's fund. Okay, this is what you need to remember. The adoption of resolution. So resolution in United Nations General Assembly can be adopted in two ways, that is reaching consensus among member states and by voting on the resolution. यानी जो भी रेजोल्यूशन लिया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसको अडॉप्ट करने का दो ही तरीका है, राइट। आप पहले तो कंसेंसस बना लीजिए, उसके बाद वोट करा लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे जनरल असेंबली के कुछ सब्सिडरी ऑर्गन्स हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मदद करते हैं, और उनका अपना फिक्स्ड पर्पस है। तो इसमें एक डिसआर्मामेंट कमीशन है, ऑब्वियसली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करता है। एक ह्यूमन राइट काउंसिल है जो कि अगेन जनरल असेंबली को रिप्रेजेंट करती है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन है, जॉइंट इंस्पेक्शन यूनिट है, देयर आर मेजर कमिटीज़, देयर आर स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड एड हॉक कमिटीज़। तो एक तरीके से इंडिया में जो लोकसभा का रोल है वो आपको दिखाई देगा यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली का रोल है ना। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते। तो आप सोचेंगे कि यार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को कैसे काउंटर कर पाएगा? तो ये लीग ऑफ नेशंस का सबसे बड़ा चैलेंज है, और यही वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनका भी सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आया हो, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस रहते हैं वो बाइंडिंग रहते हैं, और बाकी के नॉट लीगली बाइंडिंग रहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, कंसेंसस और वोटिंग, ये दो तरीके थे जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कंसेंसस और वोटिंग के थ्रू डिसीजन दिया जाता है। तो कंसेंसस यानी एक तरह की सोच, एक तरह का डिसीजन, राइट, तब बनता है ऑल मेंबर स्टेट्स हैव एग्रीड टू अडॉप्ट द टेक्स्ट ऑफ द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन विदाउट टेकिंग अ वोट। मतलब कि ठीक है, जो बात रेजोल्यूशन में कही जा रही है हम उससे क्या हैं, सहमत हैं, ठीक है। कंसेंसस विल नॉट बी रीच्ड इवन इफ वन मेंबर स्टेट रिक्वेस्ट्स अ वोट। कंसेंसस का मतलब है कि अच्छा, ये डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ अगर कही गई है, आप वोट बाद में कराते हो, वोट फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आया जिसको सबने कहा कि यार बढ़िया है, तो वोट कराने की क्या ज़रूरत है, राइट। अगर किसी एक कंट्री ने कहा नहीं नहीं वोट करा लो इस पर, तो कंसेंसस टूट गया। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कंसेंसस डज नॉट मीन दैट ऑल मेंबर स्टेट्स अग्री ऑन एवरी वर्ड इन द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, दे स्टिल हैव रिजर्वेशन अबाउट सर्टेन पार्ट्स। तो कुछ मेंबर कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब भी ह्यूमन राइट्स की बात आती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर के ऊपर कोई डिस्कशन हो रहा होता है, रेजोल्यूशन हो रहा होता है, तो इंडिया कुछ चीज़ों को चेंज करने की बात करता है। दो ओवरऑल कंसेंसस होता है, लेकिन कुछ पार्ट्स को हम चेंज करा सकते हैं। तो हर मेंबर स्टेट के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने जो पार्ट्स हैं जो डिस्कस हो रहे हैं उनके लिए उनके रिजर्वेशंस हो सकते हैं। Thus, the viewpoint of every member country is taken into consideration. This process is very inclusive in nature. तो consensus definitely would be very very inclusive in nature. Voting की बात करें, it need to get a simple majority to agree on the text of a resolution. Simple majority चाहिए रहती है, ठीक है, simple majority. There is no need to care about the perspective of the minority who disagree, and those countries who did not vote in favor of a resolution on a particular agenda will be less likely to implement the actions on an agenda item that are recommended in the resolution, and the voting creates the division. Okay, now we are coming to an important organ, that is United Nations Secretary General. So United Nations Security Council in
नाइन्थ सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरस का सेकेंड टर्म है, जो कि 5 ईयर्स के रहेगा 2022 से लेके, ठीक है। तो ये 8th भी रह चुके हैं सेक्रेटरी जनरल, ही ऑल्सो हैड बीन 8th सेक्रेटरी जनरल, ही ऑल्सो हैज़ बीन 9th सेक्रेटरी जनरल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव कर दिया। टर्म लिमिट्स नहीं है, सेक्रेटरी जनरल कितने देर कितनी बार भी चाहे वो सेक्रेटरी जनरल बन सकता है, लेकिन अभी तक एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन किसी सेक्रेटरी जनरल ने 2 टर्म से ज़्यादा सर्व नहीं किया है। और ये चुनाव यूएनजीए में होता है, रिकमेंडेशन यूएनएससी में होता है, दैट इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन। अब एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस, इट्स अ सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें 16 सदस्य होते हैं, राइट, 16 मेंबर्स होते हैं, जो बजटरी क्वेश्चंस पे डिसीजन देते हैं। इनका मेन पर्पस कुछ नहीं होता, इनका कहने का मतलब होता है कि यार देखो यूएन के पास जो भी पैसे आ रहे हैं मेंबर कंट्रीज़ के, कैसे कैसे करके वो पैसा दे रहे हैं, उनका जो जो यूज़ है वो प्रॉपर किया जाए, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो इस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उनको जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पर्सनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से चुनता है। जैसे सुरेंद्र कुमार अधाना फ्रॉम इंडिया वॉज री इलेक्टेड टू the key UN advisory committee for the 2-year period term. Surendra Kumar Adhana. Always remember this. Right? And now we are going to move further and we are going to expand our discussion into other areas. So, जो 2024 में स्टार्टिंग में अपने लिए इम्पॉर्टेंट एरिया रहा है देखने वाला, वो ये रहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो कुछ मीटिंग्स हुई इस साल, और वो मीटिंग्स अपनी गाज़ा को लेके हुई, पैलेस्टीन और गाज़ा के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको लेके मीटिंग हुई है यहाँ पे, है ना। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ओके, हियर एंड इन दिस। देखिए सबसे पहले मेन बात क्या थी यहाँ पे, जो आर्टिकल 99 है यूएन चार्टर का, उसको इन्वोक किया गया था। द आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर वाज इन्वोक्ड एंड इन दिस व्हाट हैपेंड, देयर दैट द स्पेशल मीटिंग वाज कन्वीन्ड, ठीक है। आर्टिकल 99 में जो स्पेशल मीटिंग है वो कन्वीन की गई और बोला गया कि सीज फायर लेके आएंगे, राइट। आर्टिकल 99 किसको एम्पावर करता है, तो सेक्रेटरी जनरल को एम्पावर करता है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के अटेंशन में कोई भी ऐसी चीज़ ला सकता है जो उसके नज़रिए में जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को थ्रेटन करती है। तो आर्टिकल 99 के अंदर जो गाज़ा स्ट्रिप पे मिलिट्री अटैक्स हैं उसका अटेंशन एंटोनियो गटरेस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने लेके आया। अब ये कोई बाउंडेशन नहीं है सेक्रेटरी जनरल पे कि आर्टिकल 99 को वो यूज़ ही करे, तो ये आर्टिकल 99 सेक्रेटरी जनरल पे कितनी सोचिए वाइड डिस्क्रिशनरी पावर को कास्ट करता है, राइट। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि जो डिसीजन जो भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है वो नॉन बाइंडिंग होता है। कैसा होता है? नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 10th इमरजेंसी स्पेशल सेशन बुलाया और प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस इन इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट उसको अडॉप्ट किया गया। जॉर्डन ने ये सबमिट किया था, जिसको को स्पॉन्सर 40 नेशंस ने किया कि हाँ इस मुद्दे पे क्या होना चाहिए, बात होना चाहिए। बांग्लादेश, मालदीव्स, पाकिस्तान, रशिया, साउथ अफ्रीका, ये सभी देश क्या थे इसमें इन्वॉल्व थे, ओके। ये सभी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, राइट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया 120 नेशंस ने इसके फेवर में वोट किया, 14 ने अगेंस्ट में वोट किया, 45 नेशंस ने एब्सटेन किया और इंडिया ने इस वोट को मतलब इस रेजोल्यूशन को एब्सटेन ही किया। इंडिया ने कहा कि इस रेजोल्यूशन में बिकॉज ये तो बात की जा रही है कि ह्यूमन किलिंग्स नहीं होनी चाहिए पैलेस्टीन में, लेकिन जो अटैक हुआ इजराइल पे उसके ऊपर कोई कंडेमनेशन नहीं है। सो इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ रेजोल्यूशन विच इज़ यूनिलैटरल और taking only one aspect in mind. So the special sessions, the emergency sessions which are convened under United Nations General Assembly, these are concluded जब there is a deadlock United Nations Security Council में। deadlock कब होता है? जब वीटो पावर वाले कंट्रीज़ जो हैं दैट इज़ चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, इनमें से कोई एक वीटो कर दे एक इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पे, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रेजोल्यूशन क्वाश हो जाता है। अब लीगली बाइंडिंग रेजोल्यूशन को क्वाश कर देते हैं वोट वीटो पावर से।
तो ऐसे में यूएन मेंबर स्टेट्स क्या करते हैं, असेंबली प्रेसिडेंट के सामने बोलते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि एक सेशन कराइए जहाँ पे हम एटलीस्ट रिकमेंडेशंस तो दे सकें कि एज अ नेशन बाकी कंट्रीज़ का क्या कलेक्टिव सपोर्ट हो सकता है. ओके तो ऐसे रेजोल्यूशन को अगर 2/3 मेजॉरिटी अडॉप्ट कर लेती है, राइट, तो वो रेजोल्यूशन पास माना जाता है, जो कि मॉरल गाइड होता है एक्चुअली नेशंस के लिए. दैट इज़ व्हाट वी नीड टू रिमेंबर हियर. अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो अगेन इसका भी हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क में है, और इंडिया जो है 8 टाइम्स नॉन परमानेंट मेंबर की तरह इलेक्ट हो चुका है. ऑल राइट, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए. 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट, राइट, एंड 10 नॉन परमानेंट. And these 10 non-permanent members are selected for a term of how many years? For a 2-year term. Okay. The Security Council is the only organ that UN that has the power to make binding decisions on member states. So this is one statement which is very very important. और ये statement based questions के लिए ऐसे जो statements होते हैं वो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि जो Security Council के decisions ही binding होते हैं, बाकी किसी के नहीं. Okay. Now the main concept is that the members are selected, the non-permanent members are selected on the basis of geographical distribution. Okay, so from African group you will have 3 countries, from Asia Pacific group you will have 2, from Latin American and Caribbean group you will have also 2, from Western Europe and others you will have 2, and from Eastern Europe you will have 1. So Western Europe, Eastern Europe, Latin American, African and Asia Pacific. These are the geographical regions which are seen that they are represented in the case of United Nations Security Council non-permanent members. Arab seats are given 1 seat alternately drawn from either Africa's quota or Asia's quota by informal agreement. So you will find that Arab states are not represented in United Nations Security Council. The presidency of the United Nations Security Council also rotates alphabetically among 15 members every month. So presidency of United Nations General Assembly is yearly, but presidency of United Nations Security Council rotates monthly among 15 members. These are some of the areas that you should always not forget, because ये क्या होता रहेगा, ये आपके सामने आता रहेगा. तो क्वेश्चन के रूप में अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चंस के रूप में अगर आ गया तो यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस. कूल. सो लेट्स मूव अहेड. And now what are we going to do? We are going to see what is the voting system. So the voting system, you will find that each member has 1 vote. Permanent members have right to veto. Whatever are the decisions on procedural matters, they must have at least 9 votes in favor. Okay, substantive votes require that at least 9 votes and absence of a negative vote by any of the 5 permanent members. So substantive matters and procedural matters are very different, and in procedural matters 9 votes are required, and in substantive matters it is to be seen that the 5 permanent members are not saying no. And if there is a negative vote casted by any of the permanent members of Security Council, the resolution is not approved. Okay, if a permanent member does not fully agree and does not wish to cast a veto, it may choose to abstain. So abstain करने का जो पावर है, जो वोट ना करने का पावर है, वो दोनों के पास मौजूद है, परमानेंट मेंबर्स के पास भी और नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास भी. ठीक है. Veto powers of the P5 countries was used most frequently by Russia, blocking more than 100 resolutions so far. Okay, and this is the way the horseshoe table is. The horseshoe table is designed, and as you can see, the members are present. The permanent 5 are sitting on the left hand side, whereas Africa, Asia, Latin America, Caribbean, Western Europe and Eastern Europe, all of them are presented there. So very very vital aspect for you to remember. And then there are other aspects also, that G4 nations
which are planning to become the part or asking United Nations Security Council to add us is BGIJ. Okay. So how can you remember? That is Big J, and that is Brazil, India, Germany, and Japan. Right? There is this Razali reform plan. If they ask what is this Razali reform plan, so you will also remember that this plan was proposed by the President of United Nations General Assembly, Ismail Razali, in 1997, and he mentioned that you need to expand United Nations Security Council from 15 to 24 members. The 5 new permanent members without veto powers and 4 more non-permanent members. So veto power will only be exercised by the countries who have veto powers as of now, but the new permanent members have to be added 5, and that is what they're saying, that see, the permanent members are there because they are very, very important for geographical, you can say, representation, all right, or to represent diversity in UNSC. But this veto power with the permanent members is sort of a blockade, and this is one of the very famous, I mean, this is the general criticism with respect to functioning of UNSC. Okay. Then uniting for consensus is called as the Coffee Club. Now what is the Coffee Club? So यूनाइटिंग फॉर पीस वाला चीज़ आपने देखा था 1950 में. यूनाइटिंग फॉर पीस क्या था 1950 में, जहाँ पे ये कहा गया था कि अगर यूएनएससी फेल हो जाता है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डेलिब्रेशन करे और एक डिसीजन ले. अब यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस जो है उसको कॉफ़ी क्लब कहते हैं. दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट ग्रुपिंग because these are the group of countries who are opposing the expansion of permanent seats in UNSC under the leadership of Italy. So Italy does not want that your permanent membership should be expanded, because then there would be more contenders: Spain, Malta, San Marino, Pakistan, South Korea, Canada, Mexico, Argentina, Colombia, and Turkey. So you will find, I'll tell you one interesting thing. See, Brazil is asking for expansion of membership. Its neighbor Argentina and Colombia are denying that. Japan is basically asking for expansion of membership. Their neighbor South Korea is quite against it. Okay. Now, Canada and Mexico, being the two vital neighbors of America, are also against the expansion. Okay. Italy, and you will find that Germany. Okay. Italy and Germany. These two countries never actually got along well. Okay. And Spain, whatever happens in Spain is much influenced by European dynamics. Okay. So these are the special ways that you can remember. Turkey, being a very, very important country in you can say Islamic groups, does not want the dominance of Arab states to come, right? So these are the things that are to be seen. L69 group is a pro-reform member states, include developing countries from Africa, Latin America, and Caribbean, Asia, who support that expansion of UNSC should be done. Okay. So from again you will find here that the L69 group and Uniting for Consensus or the Coffee Club are actually rivals. Okay. The group is bound by the firm conviction that expansion in both the permanent and the non-permanent categories of UNSC is required, and currently there are 42 countries of L69 group, which essentially also includes India. Then there is another grouping that we often hear is called as the group of friends. And what is this group of friends? So this is a very recent initiative which was started by India's presidency in UNSC when India was a non-permanent member. The co-chairs have been India, Bangladesh, Egypt, France, Morocco, and Nepal. And they are basically discussing to promote accountability for crimes against peacekeepers, seek facilitation of capacity building, and technical assistance to the host state authorities. So India, Bangladesh, Egypt, France, Morocco, and Nepal. India, Bangladesh, Egypt, France, Morocco, and Nepal. India, Bangladesh, Egypt, France, Morocco, and Nepal have initiated group of friends in 2022, where जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में जो लोग अपने आदमी भेजते हैं
उनके अगेंस्ट अगर वायलेंस होती है, क्राइम्स होते हैं, तो उनको क्या करना है, कम करने की कोशिश करनी है ना, और होस्ट कंट्रीज़ को कोऑपरेट करना चाहिए. ओके, सो these are the countries and the ideas which are discussed here. Now, as you see that there were certain subsidiary organs of United Nations General Assembly that we had seen, like there was Human Rights Council, there was Disarmament Commission, then there was International Law Commission. Similarly, there are other bodies, such subsidiary organs of Security Council as well. So Security Council has a counter-terrorism committee, there is a criminal tribunal, there is a military staff committee, there is a peacekeeping operation, sanctions committee, standing committees and ad hoc bodies. What are the demands for reform in UNSC? So the number of members should be expanded. The veto being enjoyed by the 5 permanent members must be revisited. There is a regional representation issue. The size of the enlarged council and its working methods, and what is the relationship between Security Council and General Assembly as discussed in Uniting for Peace initiative in 1950. So these are the contentious issues that are being discussed in United Nations Security Council, and any reform of the Security Council actually needs 2/3 votes of the UN member states. Again, special majority. Okay, any reform which is to be done in United Nations Security Council requires amendments in UN Charter, and you need special majority to do that. So the agreement of all permanent members of the UNSC enjoying the veto is also required with respect to this. So the amendment in the UN Charter is also not, you can see, not very easy. Okay, and this is the challenge. So India has declared its candidature as a non-permanent member of the UNSC for the 2028-29 term. India has already held a non-permanent seat on the UNSC for 7 terms. Right? In total, India has been in UNSC for 14 years. 7 terms, this is quite incorrect. So there are 8 terms. Okay. United Nations Economic and Social Council, we are going to discuss that in the latter part of the video. So please subscribe to the channel and see. Actually, you just have to sit back, relax, sit with a copy and a pen, and just go through the way I am explaining, and just write down the notes there, and this is going to help you in the longer run. Okay, so the remaining bodies which are there is too much that we are going to discuss. It's a document of around more than 100 pages, and we are going to completely discuss this. There would be sessions of 30 minutes taking you through multiple topics. Okay, and that is how we are going to cover the international organization. So please subscribe to this particular channel so that I and you can get along in this path for preparation and be mutually helpful. Okay, see you in the next.